So very warm welcome everyone to the next episode of Healthify Health Talk series. And today we have eminent members with us. We have Miss Sheetal, who is a modern Ayurveda nutritionist, a wealth practitioner, wellness coach, and helping out people in not only weight management, but also reversing the diseases. And we have along with us Mr. Pramod, who is also a sports nutritionist and awarded as a best healthpreneur 2023 in health sector. He is experienced for 12 years and he is also there who's working out to not only heal people, but also he's side by side, he's educating too. So thank you so much, Mr. Pramod and Ms. Sheetal to come here on this panel, and I give you a very warm welcome. So thank you so much for taking out your time, and we are really, thank you to both of you that you took time and from your busy schedule, and now you are here to share your things. Your experience, how you are helping out people and your expert knowledge on today's topic that we have selected, that is weight management, and how it can be very good for a healthy heart, how it is necessary in order to work out for a healthy heart, we need to manage our weights. And today we'll be also working on towards some misconceptions that these days people have. तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, and I would definitely look forward to everybody, both of you, to give your valuable inputs on today's session. Yes. So how are you feeling now? Great feeling. Thank you too, and Healthify Institute inviting me, and he also. Yes, ma'am. Feeling very glad to hear, and thank you for giving us chance to discuss on this topic with you all. Being with Healthify is always a proud moment for all of us. Your voice you are not audible, ma'am. I'm not able to hear you. I'm not able to hear you. Well, now yes. Okay. Now. So before that, I was audible to you? Yeah. Okay. So I would like you to introduce yourself also, that what are you doing currently? आप कब से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? कब से चीजों को लेके लोगों को हील कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं? So we'll definitely take your feedback. Yes, ma'am. मेरे हस्बैंड तो पिछले 12 साल से इस फील्ड में है, हेल्प कर रहे हैं लोगों की। मैंने पिछले 3 साल से इस फील्ड में काम करना चालू किया। 300 प्लस लोगों को मैंने उनका वेट मैनेजमेंट करने में, उनका फिटनेस गोल अचीव करने में हेल्प किया है। मेरा गोल है कि मैं 1 लाख लोगों तक जाऊं, उनको हेल्प करूं, उनका वेट मैनेजमेंट करने में, उनका फिटनेस गोल अचीव करने में। प्रमोद जी, थोड़ा आप अपने बारे में भी बताइए हमारे लिए। Yes. I started in back 2011. तो 2011 से मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। आई कम्प्लीटेड माई स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बाय K11 एंड लेटर ऑन मैंने मेरा ये लर्निंग जो जर्नी है वो कभी रोका नहीं, उसमें मैं काफी एक्सप्लोर करते रहा। बीच में फॉर फ्यू इयर्स आई वाज associated with one of the company to train their teams to sell supplements and products, तो वो एक ट्रेनिंग का एंगल वहां से डेवलप हुआ। एंड फिर मैंने सोचा कि कुछ एजुकेशन और कंसल्टिंग ऐसा कॉम्बिनेशन करके कुछ डिजाइन किया जाए। सो इसको मतलब कोविड में फोर्सफुली आई पुश हर टू कंप्लीट हर न्यूट्रिशन कोर्स, एंड अभी इसके सपोर्ट के साथ हमने एक बहुत अच्छा तरीके से इसमें एक्सप्लोर करते जा रहे, दैट आई एजुकेट द क्लाइंट एंड शी हैंडल द डाइट पार्ट एंड कंसल्टिंग पार्ट। सो इस तरीके से वी आर वर्किंग, एंड जैसे आपका साथ मिला तो अभी थोड़ा और बोलते ना हौसले और बढ़ गए, और वो दिख रहा है कि बड़े नंबर्स हम जो जल्दी हिट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप लोग बहुत हेल्प करते हो कोचेस को, बिकॉज टोटली मतलब मैं आपका सपोर्ट सिस्टम देखता हूँ, इतना हैंड होल्डिंग, इतना मतलब आपको बोलते ना सोचने का, दूसरा कुछ सोचने का मौका ही नहीं देते। और थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है बीइंग पार्ट ऑफ हेल्थीफाई।
जो ऐसा लग रहा था कि करेंगे कुछ इसमें अच्छा होगा, बड़ा होगा, बट बिकॉज ऑफ हेल्दीफाई वी कैन से दैट इट विल वी कैन अचीव इट मोर फास्टर। मतलब किसी ने मुझे पूछा था ये एजुकेशन में हम कोचेस को इतना पैसा क्यों करते हैं, हम खुद से क्यों नहीं सीखते। तो मैंने उसको एक ही बात कही थी, जो मैं बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, कि जब आप किसी कोच के साथ जाते हो तो जो चीज करने में आपको शायद 10 साल लग जाएगी, वो कोच के भरोसे आप 1 साल में कर लोगे। और वो मुझे दिख रहा है बिकॉज ऑफ हेल्दीफाई वी कैन मार्क, मतलब वो अचीवमेंट्स हमारे हो जाएंगे उस हिसाब से। थैंक यू सो मच प्रमोद जी फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के एक्सपर्ट नॉलेज लेते हैं। आज का सेशन हम लोगों ने वेट मैनेजमेंट पे रखा है, वेट मैनेजमेंट के मिथ्स एंड फैक्ट्स, साथ ही साथ कैसे वेट की वजह से लोगों की हार्ट के इश्यूज, डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम उस पे लेंगे। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो डाइटिशियंस हैं, पेशेंट्स हैं, जो भी इस सेक्टर में है, जो ओबेसिटी से परेशान है या फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं हाई टाइम है, मैं वेट मैनेज करना चाहिए, मैं अपनी धीरे धीरे अपनी कैटेगरी से ऊपर जा रहा हूँ, मेरे हार्ट डिसऑर्डर्स डेवलप होने शुरू हो रहे हैं, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। प्लस जो डाइटिशियन हम सबको सुन रहे हैं, उनके लिए जो स्पेशली वेट मैनेजमेंट में काम करते हैं, उनको कैसे आज के एक्सपर्ट नॉलेज के साथ कैसे अपने इनपुट्स पे वर्कआउट करना है, कैसे अपने इम्प्लीमेंटेशन पे वर्कआउट करना है, आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत सपोर्टिव होने वाला है। तो स्टे बैक विद मी और एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग सबकी क्वेरीज लेंगे वन बाय वन। ओके, तो चलिए प्रमोद जी एंड शीतल जी आपसे पूछते हैं कि बेसिकली ये वेट मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली इट इज, क्योंकि मार्केट में most of the people just focus it on calorie deficit, but आपके accordingly weight management क्या है, what is it all about? हाँ मैम, पहले तो समझ लेते कि इसके बारे में क्या लोगों की ये है। वेट मैनेजमेंट करने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, मतलब फटाफट से वेट कम करने में लग जाते हैं। तो पहले तो समझना चाहिए कि वेट और फैट के डिफरेंस क्या है। मतलब वेट कम करने जाए तो बोन्स का भी होता है, मसल्स का भी होता है, फ्लूइड का भी होता है, हेल्दी फैट्स भी जो होते हैं, इसेंशियल फैट्स वो भी होते हैं। तो वेट कम करने जाए तो उसका भी वेट कम हो जा सकता है, मतलब वो नहीं कम होना चाहिए। इसके लिए हम मतलब हमारे मेजरमेंट्स ट्रैक करते रहने चाहिए, जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि फैट बढ़ रहा है या हमारा मतलब मसल तो ज्यादा जगह नहीं लेगा, बोन्स का तो वेट बढ़ेगा तो वो भी ज्यादा जगह नहीं लेगा। जब फैट बढ़ता है तो ज्यादा जगह लेता है। तो हमने समझना चाहिए कि मेजरमेंट लेते हुए कि किसका वेट बढ़ रहा है। मतलब एक समझ में लेना चाहिए, एक आयन का ये है और एक थर्माकोल का ये है। आयन का तो वेट वैसा ही रहेगा, वो भले वो पतला दिखेगा, लेकिन थर्माकोल दिखने में ज्यादा बड़ा लगेगा। वैसे ही फैट का और मसल्स का और बोन्स का होता है। तो उसी हिसाब से हमने ट्रैक करता रहना चाहिए और उसकी अवेयरनेस होना चाहिए। और जब वेट मैनेज करना है तो मतलब वेट बढ़ गया है तो बहुत सारे ये भी होते हैं, डिजीजेस भी होते हैं, हार्ट, लाइक जैसे कि आपने बोला हार्ट डिजीज, डायबिटीज, पीसीओएस, थायराइड हो गया, ये सब डिजीज बढ़ने लगते हैं। तो इसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, उसी हिसाब से हमें केयर भी करना चाहिए। प्रमोद जी आपका क्या टेक है इस चीज पे? यस, जैसे कि लोग कैलोरीज कैलोरीज बहुत बोलते हैं, बट सिर्फ कैलोरीज करके नहीं चलेगा। कैलोरी में हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि कैलोरी हम कहाँ से ले रहे हैं। लाइक अगर बात करें कि 1 एप्पल इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज, एंड अगर हम 100 ml कोक ले तो इट इज बिलो 50 कैलोरीज। सो कोई बंदा कैलोरी कैलकुलेट कर रहा है और वो बोल रहे नहीं मैं कोक लूंगा और मैं एप्पल की जगह में कैलोरी टारगेट कर रहा हूँ, तो कोक से मिलने वाली कैलोरी इंसुलिन को स्पाइक करेगी एंड इट विल गेट कन्वर्ट इन द फैट। बट अगर वो एप्पल दे रहा है, सो मैंने एक लाइन बहुत अच्छी सीखी है, दैट पैसा कम बनाने के लिए पैसा लगता है तो फैट बर्न करने के लिए भी कैलोरीज लगती है। तो उसी तरीके से अगर वो सही कैलोरीज ले रहा है, लाइक ही इज ईटिंग एन एप्पल, सो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी विल बर्न 120 कैलोरीज। सो सिर्फ कैलोरी कैलकुलेशन में ना पड़े, अगर आप कैलोरी कैलकुलेशन को पकड़ के वेट मैनेजमेंट करने जा रहे हो, सो आप उसमें हमेशा फेल ही होगे। और उससे अच्छा हमारा बीएमआर अगर हम थोड़ा बढ़ाएं
जिससे हम कैलोरी ज्यादा बर्न कर सकते हैं, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। हम हमारी सिर्फ जो पूरा हम एक्सरसाइज पे फोकस रहते हैं, उससे सिवा भी हम थोड़ा हम खुद को और एक्टिविट रखें, जिससे हम कैलोरीज की कैलकुलेशन से बाहर आ जाए। मतलब डर जो है, जो खाना खाने का डर है, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है वेट मैनेजमेंट करने के लिए। बिकॉज जितना आप कम खाओगे उतना आप ज्यादा मुश्किल में रहोगे, जितना आप सही खाओगे तो वो आपको एक हेल्थ कोच, एक एक्सपर्ट हमेशा गाइड करेगा। Yes. तो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कौन से लोग ऐसे हैं जो ज्यादा रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल कि अगर हम जैसे हार्ट डिसऑर्डर्स की बात करी, यहाँ पे शीतल जी ने बोला कि पीसीओएस की बात करी, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब हाई टाइम है, आपको अपने वेट को अब नहीं कंट्रोल किया तो फिर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो कौन से लोग हैं आपको ऐसा लगता है? यस, तो इसमें क्या है कि फोकस ये करना है सबसे पहले तो, अभी जिस टाइप का हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो बहुत बड़ा एक इश्यू बन चुका है। लाइक सबसे पहली चीज मैं बोलता हूँ, अगर हम अलार्म से शुरुआत करते हैं दिन की, तो हमें मतलब मैं थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड दोनों हिसाब से मैं बात करूंगा। सो वो लोग जो सोने का अलार्म नहीं लगाते, उन्होंने पहले एक काम करनी चाहिए। हम जगने के लिए अलार्म लगाते थे, हमने सोने के लिए भी अलार्म लगाना चाहिए। तो जो लोग सही नींद नहीं ले रहे, वो सबसे ज्यादा ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं खुद को, क्योंकि जितना आपका स्लीप टाइम कम होगा या आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा कि बॉडी फैट स्टोर करने पे ज्यादा काम करेगी। तो सबसे पहला रिस्क अगर आप बोल रहे हो, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट इज स्लीप। जो हम मतलब उसको हमें मैनेज करना ही पड़ेगा। जो लोग सही स्लीप नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब उनका हार्ट का भी रिस्क है और वेट का भी रिस्क है। फिर वो जरूरी नहीं है कि आपका वेट ज्यादा है या कम है, आपका हार्ट का रिस्क एसोसिएटेड विथ योर अगर आप स्लीप कम ले रहे हो। दूसरा आपको फोकस करना है, दैट इज मतलब जो फ्री की चीजें हैं, जैसे कि हम सुबह जल्दी जगना या छोटा मोटा एक्सरसाइज करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग 150 मिनट्स ऑफ वर्कआउट टू योर बॉडी इन अ वीक, ऐसा WHO का मानना है कि मिनिमम 150 मिनट्स निकालो। सो उतना भी आप नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर वो किधर जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि आपको रिस्क है या नहीं है। आप डिफॉल्ट रिस्क पे हो, डिफॉल्ट। अभी होता क्या है, जब आपकी एज यंग है तो थोड़ा आपको ये शायद इतना महसूस नहीं होता है, और इसलिए मैंने जो स्टडी किया है और मैंने जितना रिसर्च किया है, मुझे इतना पता चलता है एट द एज ऑफ 26 सब कुछ ठीक रहता है, एंड एट अबाउट 35 सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। मतलब और वही से ही उसी एज ग्रुप से ही ज्यादा लोग हमें अप्रोच करते हैं टू बिकम, मतलब वेट मैनेज करने के लिए या स्लिम होना है, ये होना है। तो ये हुआ क्यों? ये रातों रात तो हुआ नहीं। सो आपने वो जो भी इतनी सारी समय से आपने जो अपने बॉडी के ऊपर जो भी किया है, जिस तरीके का लाइफस्टाइल आपने किया है, तो उसका ये एंड रिजल्ट आया है। सो यहाँ पे हमें फोकस करना है। उसके बाद फिर आज हम पैकेज फूड ज्यादा ले रहे हैं, तो पैकेज फूड अगर आप ज्यादा ले रहे हो और विदाउट हैविंग नॉलेज टू रीड फूड लेबल्स, इस हिसाब से ले रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऐसा पता नहीं चल के आता। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, गलत टाइप के डाइट्स फॉलो करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और ये शॉर्टकट्स ही आपको यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर है जहाँ पे। और फिर जब आता है, ये तो हो गए जो आपको महसूस नहीं होते। फिर आते हैं आपको जब आप चेकअप करते हो, लाइक इफ somebody is in having already diabetes, like somebody is suffering from PCOS, then somebody is having thyroid disorder है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने हैं, ये फिर आपको वहां पे लेके जाके छोड़ते हैं। सो वो तो मतलब क्लिनिकल आ गया, बट मैं कुछ लाइफस्टाइल और कुछ क्लिनिकल दोनों के कॉम्बिनेशन से बोलूँ, तो ये सारे रीजन है जिनको केयर करना है इसके बारे में। यस। तो शीतल और मिस्टर प्रमोद, काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि एक्सट्रीम डाइट्स या क्विक विक्स वेट लॉस प्लान्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस अप्रोच? मेरा ये मानना है कि झोपड़ी अगर बनानी है तो एक दिन में बन जाती है, और अगर कोई एक लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे मजबूत एक अगर इमारत बनानी है तो उसके लिए कुछ समय लगता ही है। तो आपका गोल क्या है? मतलब आपको मतलब अभी आपको अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये फास्ट मतलब फास्ट चाहिए कि सस्टेनेबल चाहिए? फास्ट चाहिए तो ये काम करता है क्या?
करता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है जो एक हफ्ते में या एक महीने में रिजल्ट नहीं देगा, बट क्या आप ऐसे रिजल्ट चाहते हो कि जो आपको एक हफ्ते एक महीने में मिले और फिर बाद में उससे बड़े प्रॉब्लम में आप फंस जाओ? मतलब सिर्फ वेट लॉस करना है, यही आपका अगर इंटेंशन है, सो दिस इज गुड फॉर यू। बट अगर आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, आपको ओवरऑल फिटनेस चाहिए, सो फिर आपको शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना है। यू हैव टू गिव मिनिमम ईयर, 6 months to a year पीरियड हम कहते हैं, मिनिमम 6 months। एंड एग्जैक्टली बात करें तो 1 साल लगता ही है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। 1 साल अगर आप आपकी लाइफ का निकालते हो तो आपके 10 साल वापिस आ जाते हैं। तो अगर आप इस थ्योरी पे बिलीव करते हो, सो शॉर्टकट्स पे ना भागिए, यही मेरा कहना रहेगा। तो जैसे कि जो लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो जाते हैं फिर भी शॉर्टकट्स पे, तो शॉर्टकट्स पे चाहे वो पेशेंट्स हों, क्योंकि कई बार पेशेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं मुझे तो जल्दी रिजल्ट चाहिए, मेरे तो घर में वेडिंग है, मुझे वेट लॉस करना है, 5 kg लूज करना है, 10 kg लूज करना है। बट एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड कोच वी आर अवेयर कि उसमें टाइम लगता है। बट जब जो लोग इस शॉर्ट कोर्स पे काम करते हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट बॉडी गोज इनटू, मतलब कैसे, क्या मेजर ड्रॉबैक्स बॉडी फील करती है आफ्टर 3 months क्रैश कोर्स या 1 month क्रैश कोर्स? मतलब जो क्विक रिजल्ट, सपोज किसी ने 1 महीने में 20 किलो लूज किया, तो हमें अपनी ऑडियंस को हम क्या उनको और क्लैरिटी दें इस पे कि आपको ये भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपके हिसाब से वो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं ये कहूंगा इसमें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट देखो, ये वेडिंग में मुझे स्लिम दिखना है। क्यों दिखना है? क्योंकि मैं अच्छा दिखूं। सो सबसे पहले एक बहुत अच्छे मतलब लाइन है न्यूट्रिशनिस्ट की, एंड दैट इज सो पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट, जिन्होंने कहा है फिटनेस कम इन ऑल शेप एंड साइजेस। सो ये पहले तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेडिंग में अच्छा दिखना है, तो पहले तो हम ये भूले जाए कि सिर्फ स्लिम रहेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। फिटनेस कम इन ऑल शेप एंड साइजेस। दूसरा, आपको सिर्फ बॉडी पतली दिख रही है और आप एकदम से 15 किलो, 10 किलो, 5 किलो भी हटा देते हो एकदम से, तो व्रिंकल्स जो आएंगे उसका क्या करोगे? उसके लिए फिर आपको मेकअप करना पड़ेगा, बराबर? तो फिर क्या फायदा हुआ ना? मतलब एक तरफ से हमने एक चीज की, भाई मुझे जो चाहिए वो कपड़ों में फिट होना है, तो उसके लिए फिर हमें ढेर सारा मेकअप लगाना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। फिर आपको एनर्जी लेवल्स नहीं रहेंगे, थकान रहेगी आपके चेहरे पे, जो एक मतलब बोलते हैं ना अंदर से जो एक फीलिंग आता है, हैप्पीनेस जो आता है, जो लोग प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं ना, उनको अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आता है। वो अंदर से जो फीलिंग आना चाहिए वो आएगा ही नहीं आपको। सो वो फीलिंग आप मिस करोगे। ये तो मतलब ऊपर ऊपर की बातें होगी। और अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो जैसे ही वेट लॉस होगा, बोन डेंसिटी लॉस होगा। जैसे शीतल मैम ने कहा था कि लीन बॉडी मास का वेट अलग होता है, तो वो लीन बॉडी मास अगर आपका चला गया, जिसको आपने प्रिजर्व करना है, एक्चुअली जितना आपके अंदर मसल रहेगा उतना आपका बीएमआर अच्छा रहेगा, उतना आप कैलोरीज ज्यादा बर्न कर सकते हो, आप ज्यादा खा सकते हो। जितना आप स्टारवेशन मोड में रहोगे, जितना आप ऐसे क्रैश डाइट्स करोगे, उतना आपका बीएमआर हैमर होगा। आप बहुत कम खा रहे हो और फिर क्या होगा, 2-3 महीने बाद आपने मान के चलो 5 किलो कम भी किया, तो वो 5 किलो तो बहुत फास्ट बढ़ेगा, लेकिन वो 5 किलो नया जो बढ़ेगा वो शायद मसल नहीं बढ़ेगा, वो फैट बढ़ेगा। हमने क्या किया, जो हम बोल रहे हैं कि हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आपका बॉडी का आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन होना चाहिए, वो होने की बजाय वो क्या हो गया, वो अपने आपका बॉडी कॉम्पोजिशन पूरा अनहेल्दी लेवल पे लेके गए, लीन बॉडी मास को निकाल दिया और अपने बॉडी में एक्सेस फैट बढ़ा दिया। तो ये आपके उसके ड्रॉबैक्स होते हैं मेरे हिसाब से। और तो इसमें इस बहुत कॉमन ड्रॉबैक हमने ये भी देखा है, जो क्रैश डाइट्स करते हैं या जो एकदम से 20 से 25 किलो वजन घटा लेते हैं क्रैश डाइट्स करके, विदाउट एनी सपोर्ट और हेयर लॉस। गाइडेंस। न्यूट्रिशन का तो ऑब्वियसली वहां पे लॉस होता ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लार्ज स्केल पे देखते हैं कि स्किन लटक जाती है, राइट? कि कोई 150 केजीज के थे, उन्होंने एकदम से 50 to 60 केजी लॉस किया, तो वहां पे उनकी स्किन लटक गई। आप कितनी भी मेहनत कर लो, हम अपनी ऑडियंस को ये चीज की और क्लैरिटी देना चाहेंगे, आप कितनी भी मेहनत कीजिए, चाहे आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर रहे हैं उनपे, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो वहां पे मसल लॉस नहीं करना है, हमें फैट का लॉस करना है। अगर आपने फैट लॉस की जगह साथ साथ मसल लॉस भी करवा दिया, तो वहीं पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि स्किन लटक जाएगी। Instead of giving that younger life to the patient will look much more older than the current life, right? So thanks so much, Mr. Pramod. Moving ahead, we'll definitely go with the part like
ऐसा क्या न्यूट्रिशन है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ व्हाट डाइट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन वेट मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंगली? डाइट का क्या मेजर रोल है उसमें, और कैसी डाइट देनी चाहिए? क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं जो सपोर्ट करेंगे वेट मैनेजमेंट में? यस, इसमें डाइट में अभी अलग अलग टाइप के डाइट फैट्स रहते हैं या डिजाइन किया जाता है। कोई बोलता है इंटरमीडिएट फास्टिंग पे रहो, किसी किसी को वो भी वर्क कर जाता है कि कोई बोलता है लो कार्ब या इस पे मतलब लो कार्ब रहो, कोई बोलता है कीटो डाइट करो। अभी डाइट के अलग अलग फैट्स तो है, लेकिन हमें सामने वाले के साथ हेल्थ असेसमेंट करके उसके साथ बात करके उसका एक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो सामने वाला डायबिटीज है से सफर कर रहा है, इफ इज हैविंग थायराइड या कोई इश्यू नहीं है, जस्ट फिटनेस के लिए काम कर रहा है, तो पर्सन टू पर्सन डाइट पहले तो चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ज्यादा इतना भी बहुत बड़ा चेंज उसमें नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा चीजें तो चेंज हो जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक कि उसका मेटाबॉलिज्म पहले ठीक होना चाहिए। जहाँ पे मतलब अगर वेट ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है, लाइक आज का टॉपिक हमारा हार्ट से कनेक्टेड है, तो उसको थोड़ा हार्ट का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्टली हार्ट का इश्यू है तो फैट पे काम किया जाता है। तो फैट में भी देखना पड़ता है कि दो टाइप के फैट्स रहते हैं, हेल्दी फैट्स रहते हैं, अनहेल्दी फैट्स रहते हैं। तो कोशिश करनी है उसके डाइट में हेल्दी फैट्स का परसेंटेज बढ़े। पैकेज फूड में जितना भी आप पैकेज फूड कंज्यूम करोगे उसमें से अनहेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में ज्यादा आने वाले हैं। तो यहाँ पे डाइट में हमें अब ये रखना पड़ेगा कि सारे न्यूट्रिशन लाइक उसकी जो वेट है उसके हिसाब से उसका प्रोटीन इंटेक सही जा रहा है। अभी एकदम से प्रोटीन बढ़ा के भी नहीं चलेगा क्योंकि उतना समय से उसने खाया नहीं है उतना। अगर हम इंडियन डाइट्स को स्टडी करें तो जो हम नॉर्मल खाते हैं 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, भले आपका वेट एक्स्ट्रा है नहीं है कोई मैटर नहीं करता। 20-25 ग्राम प्रोटीन में क्या ही होने वाला है, मतलब आप डेफिसिट में ही जाओगे। तो अगर हम पहले उसके डाइजेशन को करेक्ट करें, फिर उसके प्रोटीन इंटेक को करेक्ट करें, फिर हम उसके कार्बोहाइड्रेट्स उसको जितना हो सके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अभी कॉम्प्लेक्स को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जिन जिन कार्ब्स में फाइबर का परसेंटेज ज्यादा है दैट आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम ये सब कुछ करें और उसकी मील्स को लाइक अगर वो दिन में 3 मील ले रहा है, मेजोरिटी केसेस में ये देखा गया है, उसी मील को स्प्लिट करो मतलब इंटू 2। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे काम करते हैं और उसके बीएमआर को सही से वर्क करते हैं और टाइमिंग्स, अभी वो उसके काम के हिसाब से देखना पड़ता है कि अगर वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई हाउसवाइफ है तो वो हमको मैनेज करना पड़ता है, स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से उसको जितना कन्वीनियंट हो, और धीरे धीरे ये चेंजेस अगर वो करता है, एकदम से भी अगर करने जाएगा तो शुरू शुरू में मोटिवेटेड रहेगा और एकदम सडन चेंजेस उसको उसका मोटिवेशन ड्रॉप कर देंगे। तो ये ग्रेजुअली अगर जितने भी यहाँ पे हेल्थ कोचेस सुन रहे हैं तो अगर ये ग्रेजुअली करेंगे तो क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो जो भी हमारे रिस्क फैक्टर्स के अंडर आते हैं उन पेशेंट्स को कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए? वो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आप उनको रिकमेंड करोगे जो ओबेसिटी कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट? जो आपको लगता है जैसे आपने बताया जो रिस्क फैक्टर्स में है, तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हम उनको सजेस्ट करें? हाँ, इन्होंने पहले बोला तो पहले तो स्लीप पे काम करना चाहिए। 7 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए। वो रात में पूरी नहीं हो रही है तो दिन में थोड़ी सी पूरी कर लेनी चाहिए। दूसरा है कि न्यूट्रिशन में काम करना चाहिए, मतलब पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, मतलब डे बाय डे होना चाहिए पोर्शन कंट्रोल। तो पोर्शन कंट्रोल में मिस शीतल जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोर्शन कंट्रोल है, राइट? तो पोर्शन कंट्रोल में जनरली लोग नहीं कर पाते हैं, वो भी मैं आगे आपसे और डिटेल में थोड़ा सा पूछूंगी कि कैसे आप पोर्शन कंट्रोल पे भी उनको आप गाइड कर सकते हो, कि अगर कोई टिप्स हैं कि कैसे खाने पे कंट्रोल करना है, कैसे बाउल्स को यूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम जब पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात, तो मैक्रो और माइक्रो दोनों ही आते हैं, राइट? तो वहां पे वेट मैनेजमेंट पे आप थोड़ा सा और भी गाइड कीजिए कि मैक्रो और माइक्रो में ध्यान में रखकर कैसे आप न्यूट्रिएंट का बैलेंस करेंगे साथ साथ। मैक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन, कार्ब, फैट्स, हम इनको मैक्रोज में कंसिडर करेंगे। माइक्रोज में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर भी हम थोड़ा सा कंसिडर, वैसे तो फाइबर मैक्रोज में ही आएगा, फाइबर एंड वाटर विल बी इन माइक्रो। तो अभी क्या रहता है, हम अगर मेरा मानना ये है कि अगर हम मैक्रोज पे ज्यादा फोकस रखेंगे तो माइक्रोज
कवर हो ही जाते। मैक्रोज में हमें ध्यान रखना है, फाइबर में अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे हम थोड़ा फोकस करेंगे तो विटामिन्स और मिनरल्स हमें वही से मिल जाएंगे, माइक्रोज वहां से बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं। अभी अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो हमें आरडीए के हिसाब से रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो कहता है कि एक पर्सन को उस एज ग्रुप में कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कितना अमाउंट ऑफ फैट, कितना अमाउंट ऑफ कार्ब्स ये लेना, अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो हमारा जो पूरा जो हेल्दी प्लेट बिल्डिंग जो हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसमें जब आप कोई भी थाली लो तो उसमें ये सब कुछ है क्या। अगर मैं पूछूं आपको कि आपका ब्रेकफास्ट क्या है, अभी मेजोरिटी लोग जो अब हमारे पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो हम उनका ब्रेकफास्ट चेक करते हैं तो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, चाय बिस्किट्स रहता है। अभी लोगों ने बिस्किट शिफ्ट किया है, वहां बोलते हैं वो न्यूट्री चॉइस बिस्किट खाते हैं, हम ये वाला बिस्किट खाते हैं, हम किसी ब्रांड को नहीं ये कर रहे, बट लोग क्या कर रहे हैं चाय के साथ उनका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ये हो चुका है कि हमें लग रहा है कि ये हेल्दी लिखा है, वो लिखा हेल्दी है, इसके लिए अंदर इसका मतलब वो हेल्दी है ऐसा नहीं है, बट वो और वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है क्या। वी आर सो लकी टू दैट वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे हमारे पास हर टाइप का वेजिटेबल्स मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, इतने सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है, तो हम क्यों इन जगह पे जाए। उससे अच्छा हम सही ब्रेकफास्ट अगर हम करें जहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट में उसमें अगर प्रॉपर प्रोटीन वाले जो कंटेंट्स है वो अवेलेबल है, लाइक एग्स अगर आपको प्रेफर करता है तो एग्स ले सकते हो, उसके साथ आपको नट्स शुरू कर सकते हो दिन में, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, पोहा है, उपमा, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम इसमें से जो भी आपको लगे, मतलब इतनी वैरायटी है हमारे ब्रेकफास्ट में, अगर हम किसी प्रोडक्ट को किसी भी आइटम को आज बनाते हैं तो शायद उसको रिपीट करने में 1 महीना लग जाए, इतना हम अच्छे से मील प्लानिंग कर सकते हैं। फिर भी लोग वही वही टाइप का ब्रेकफास्ट और वही वही टाइप की चीजें रिपीट करते हैं। तो ये एक एक प्लेट के ऊपर हम काम करें, लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, कि उसमें सब कुछ अवेलेबल है क्या, जिसमें मुझे प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सही क्वालिटी के कार्ब्स मिल रहे हैं। अभी कार्ब्स में हम बात करें तो मेजोरिटी लोग सिर्फ व्हीट पे डिपेंड है, सिर्फ चपाती ले रहे, सिर्फ चपाती, मतलब सुबह क्या है, बहुत सारे लोग को तो सुबह भी चपाती, दोपहर में चपाती, रात में भी चपाती, इतना व्हीट खाओगे तो बाकी ऑप्शंस है ना, और यही चीजें बच्चों को भी खिला रहे हैं। सो मतलब अभी से वो बच्चों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से जब सिंगल ही चीज जाएगी तो सारा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो जितने हम फूड में वैरायटी लाए और सही ऑप्शंस को चुने, लाइक रागी है, उसके साथ आप ज्वार ले सकते हो, सीजन वाइज बाजरा ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जिसपे हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और आज के डेट में इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, दूर रहना है जितना हो सके उतना पैकेट फूड से दूर रहना है, जितना हो सके प्रोसेस फूड से दूर रहना है, और थोड़ा सा हम प्लानिंग करते हैं, हम सब चीज की प्लानिंग में लग जाते हैं। थोड़ा मील प्लानिंग के लिए भी अगर एक हफ्ते में एक दिन लगता है, आधा घंटा लगता है, अच्छे से बैठ के प्लानिंग करोगे तो पूरे हफ्ते का प्लानिंग आप कर पाओगे। सो इस तरीके से जाओगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको देखने में आएंगे, जहाँ पे आपके मैक्रोज और माइक्रोज दोनों कवर हो गए। थैंक यू सो मच प्रमोद जी एंड शीतल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटीज पे भी ध्यान देते हैं कि किस टाइप से फिजिकल एक्टिविटीज इनकलकेट होनी चाहिए। तो जैसे कि वॉक तो आपने कवर करी ही है कि वॉक तो करनी ही चाहिए, उसके अलावा क्या और एक्टिविटीज एवरीबडी कैन डू दैट, और कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी का वेट मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ कैसे वो हार्ट के लिए भी हेल्दी। यस, वॉक तो है ही एक अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है, अगर कुछ नहीं है तो वॉक से ही, बट फॉर ओबेस पर्सन जिनका वेट ज्यादा है, आई डोंट रिकमेंड दैट गो फॉर वॉक, क्योंकि जितना वेट आपका ज्यादा है आप वॉक पे जाओगे उसका प्रेशर आपके जॉइंट्स पे आएगा, तो शायद आपको जॉइंट पेन थोड़ा हो रहा था वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही 10-15 किलो 20 किलो एक्स्ट्रा प्रेशर आप आपके जॉइंट्स पे डाल रहे हो। सो आई डोंट प्रेफर वॉक। और मेरे हिसाब से एक्सरसाइज का डेफिनेशन ये है, जितना हमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में सिखाया गया है, कि एनी एक्टिविटी चैलेंज टू योर बॉडी इज एन एक्सरसाइज। अभी होता क्या है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और वो उसकी आपको आदत लग गई और रेगुलरली वही हो रहा है, सो वहां पे चैलेंज चला गया, तो ठीक है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज डेफिनेटली बर्न करने में हेल्प करेगा, but it will not called as an exercise, maybe it is walk and maybe any other thing. So I suggest कि gradually आपको वहां पे भी थोड़ा सा वर्कआउट का धीरे धीरे तो इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए। वॉक कर रहे हो तो योगा पे शिफ्ट हो जाओ,
योगा कर रहे हो तो उसमें थोड़ा पावर योगा कह सकते हैं, या थोड़ा सा आपके वर्क उसमें भी थोड़ा चैलेंजेस पड़ा हो। कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, सूर्य नमस्कार करते हैं तो कितना करते हैं, 10 करते हैं, 15 करते हैं, 20 करते हैं, कुछ नहीं होता है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप वॉक कर रहे हो तो फिर आप इंक्लाइन डिक्लाइन इस मोड में, इंक्लाइन मोड में करो थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा और प्रेशर आपको लेकर ट्रेकिंग पे चले जाओ, तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगे। फिजिकल एक्टिविटी में जितना वेरिएशंस लेके आओगे वो ज्यादा फायदा करेगा। बट हाँ, डेफिनेटली आपको चैलेंज तो बॉडी को करना चाहिए, क्योंकि मसल जो बिल्ड होगा वो उसी से बिल्ड होने वाला है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे मसल बिल्ड होने वाला नहीं है। तो मतलब आप अच्छी डाइट ले लो बट वर्कआउट नहीं करोगे तो वो मसल आपको बिल्ड करने में हेल्प नहीं होगा। यस मैम। थैंक यू सो मच प्रमोद जी एंड शीतल। एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जनरली फैट्स, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें हेल्दी फैट खाना है, लेकिन लोगों का ये माइंड सेट है, बेशक हम एज अ डाइटिशियन वर्क कर रहे हो या हमारे सामने हमारा पेशेंट हो, उनको ऐसा लगता है कि फैट जो है वो मोटा करेगा, इट विल मेक यू मोर ओबेस रेदर देन मेकिंग यू लूजिंग वेट, राइट? तो उस पे क्या मतलब इंटेक है आपका? उनको ऐसा लगता है कि नहीं चलो लिपिड डिस्टर्ब है तो फैट बंद कर दो। तो मतलब वहां पे फैट का, जैसे कि हेल्दी फैट और बैड फैट का डिफरेंस आपने बताया, मैं ये भी थोड़ा सा क्लैरिटी चाहती हूँ कि बीइंग अ डाइटिशियन, अगर आप वर्क कर रहे हैं, सामने आपके ऑडियंस आपको डाइटिशियन भी सुन रहे हैं, कि अगर हम किसी भी पेशेंट का डाइट प्लान बनाते हैं तो वहां पे कोई वेट मैनेजमेंट के लिए आ रहा है, तो काफी मैंने ये चीजें देखी हैं कि लोग एकदम से फैट बंद कर देते हैं, राइट? घी बंद कर देंगे, देसी घी बंद कर देते हैं, सूखी रोटी खा लो, या सिर्फ ओट्स पे स्विच कर देते हैं कि अगर 7 दिन खिला रहे हैं तो ओट्स ही जा रहा है डाइट में, ब्रेकफास्ट में, जैसे कि आपने बताया। तो वहां पे आप कैसे उनको डिफाइन करोगे कि कैसे हेल्दी फैट्स को कैलकुलेट करें? वेरी गुड क्वेश्चन वंस अगेन। कि मैं ये कहूंगा कि फैट्स में हमें ये समझ में आना चाहिए, जैसे आपने मैक्रोस के बारे में कहा था, तो हर मैक्रोस के रोल्स है। लाइक प्रोटीन के एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज है बॉडी में। प्रोटीन तो हम डेफिसिट में ही जाते हैं मेजोरिटी टाइम। हम बीइंग एन डाइटिशियन, आई आल्सो बीइंग एन न्यूट्रिशनिस्ट, आई आल्सो गो इन डेफिसिट इन प्रोटीन, बिकॉज हर मील में मैनेज करना, ये हर रोज उतना मैनेज करना हमें भी टफ हो जाता है। फिर सेकंड जो आता है रोल, वो होता है फैट का। मतलब फैट के भी बहुत सारे रोल्स है बॉडी में। आपका जो सेलुलर वॉल है वो भी फैट से बना है। आपको इसेंशियल फैट हर जगह चाहिए, जॉइंट्स के अंदर चाहिए। आपका ब्रेन पूरा, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ये, अभी कोई ऑफेंड नहीं करना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कम्युनिटी, बट ये गुजराती लोगों का, मारवाड़ी लोगों का दिमाग बहुत चलता है, इनके खाने में घी ज्यादा रहता है या साउथ इंडियन बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेट करते हैं, या उनका बहुत अच्छा ये रहता है। So why? Because they use lots of coconut in their, these are healthy fats options. So ये healthy fat work करता है क्या? Definitely करता है। Like South Indian actresses also are looking very good. Why? Because they are having coconut water and that coconut का consumption ज्यादा होता है। So these are my thoughts on this. But ये काम करता है तो हाँ, प्रोटीन के बाद अगर सबसे ज्यादा यूज में कोई चीज आती है बॉडी में जिसमें बहुत सारे फंक्शन है, दैट इज फैट। फिर आते हैं कार्ब्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो अब फैट में आपको देखना है तो हेल्दी फैट कैसे पहचाने। सबसे पहले चीज तो हमें ट्रांस फैट को आताना है। ट्रांस फैट आता कहाँ है? प्रोसेस फूड से आता है, पैकेज फूड से आता है ज्यादा करके। फिर हमें हेल्दी फैट्स में हम ऑयल कौन सा लेते हैं? ऑयल हमें बहुत कम यूज करना है। हमारे पुराने लोग क्या करते थे, पुराने ट्रेडिशन में जब भी कोई सब्जी बनती थी तो उसमें कोकोनट यूज किया जाता था, ग्राउंडनट्स यूज किए जाते थे, जो नेचुरली ऑयल अपने अंदर से छोड़ता है। तो इससे आपका जो कुकिंग ऑयल है वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। हमें रिफाइंड ऑयल को शिफ्ट करना है, हमें कोल्ड प्रेस ऑयल पे आना है। कोल्ड प्रेस ऑयल में भी आपके एरिया वाइज जहां पे आप रहते हो, जहाँ पे मस्टर्ड, आप नॉर्थ में हो, यू कैन यूज मस्टर्ड ऑयल। आप सेंट्रल में हो, यू कैन यूज ग्राउंडनट ऑयल या करडई का ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप साउथ में हो, यू गो फॉर कोकोनट ऑयल, बट यूज कोल्ड प्रेस ऑयल, डोंट यूज रिफाइंड ऑयल। ये हो गया ऑयल के लिए। ऑयल कितना होना चाहिए पर पर्सन? इट शुड बी 600 ml इन अ मंथ। अभी धीरे धीरे ही आपको कम करना पड़ेगा, बट कम करना पड़ेगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते नहीं वो कोल्ड प्रेस ऑयल कॉस्टली है। सो आई विल सजेस्ट, जब आप कोल्ड प्रेस लाओगे तो पहले तो वो कॉस्टली है, और दूसरा हम बोल रहे हैं कम यूज करो, तो ऑटोमेटिकली कॉस्टली है तो कम ही डालोगे ना, तो कम ही पेट में जाएगा, तो वो आपका फायदा होगा ही होगा। दूसरी चीज आपको करनी है, कुछ आपको हेल्दी फैट्स के ऑप्शंस में नट्स आपको ऐड करने हैं, सीड्स आपको ऐड करने हैं, जो बहुत हेल्प करेंगे आपको हेल्दी फैट्स का सोर्स। देखिए, एंड जिनको लगता है फैट मोटा करता है, तो वो चीज मोटी करती है जो आपके बॉडी में बचती है। देखो, हमको ये फैट के नाम पे डराया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के नाम पे। मतलब
हर फूड पे लिखा रहता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं। सिंपल लॉजिक हम में से बहुत सारे लोगों को, लेमैन को ये पता नहीं। बीइंग एन, हम लोगों को पता है न्यूट्रिशनिस्ट की ये नॉलेज लेमैन को कितना जरूरी है, कि उसको पता ही नहीं है कि हर फूड पे लिखा जाता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, बट कि कोलेस्ट्रॉल इज एन नॉन वेज आइटम, मतलब इट इज एन एनिमल, इट इज प्रोड्यूस बाय लीवर, सो एनी प्लांट इज नॉट हैविंग लीवर, सो जितना भी प्लांट फूड है उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। बट वो पता नहीं होने की वजह से वो बेचारा आदमी यही पढ़ता है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो ले लेगा, भाई इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है लेकिन ये खाने से तेरा बॉडी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ऐसा किधर भी नहीं लिखा है। तो वो प्रोडक्ट झूठ नहीं बोल रहा है, बट ये जो भी चीज तेरे बॉडी में एक्स्ट्रा बचेगी उससे तेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ने वाला है। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। उसके जगह हमें ये समझाना है कि हेल्दी फैट्स उसका कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे। लाइक वन ऑफ द हेल्दी फैट इज omega-3 rich, which is flax seeds. It will help to reduce his cholesterol, but it is a fat source. Like one of the healthy fat is fatty fish, but उसमें भी omega-3 है, but it will help to reduce his bad cholesterol. So ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जो लोगों में कम है, और वो बढ़ाने के लिए ही हम लोगों का काम है यहाँ पे मार्केट में। Yes. थैंक यू सो मच। इवन इसमें मैं एक इनपुट और भी देना चाहूंगी, जैसे कि हम काफी लोग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, हेल्थ कोचेज हैं, होलिस्टिकली आप सब काम कर रहे हैं। तो जनरली जितने भी लोग घी से डरते हैं, या मैं कहती हूँ डाइटिशियंस हैं या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, घी देने से डरते हैं पेशेंट्स को। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं ये बहुत वर्क करता है। जनरली जैसे कि आपको वात दोष है, राइट, आपको बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन है, या आपको गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत हो रहा है, अगर आप घी, दूध में 1 चम्मच घी डाल के उनको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन होगी वो भी रिड्यूस होती है, उनकी कॉन्स्टिपेशन भी ईज डाउन होती है, उनको ब्लॉटिंग वगैरह से भी छुटकारा मिलता है। सो ऑब्वियसली हेल्दी फैट्स ऑलवेज वर्क। इट विल नॉट ओनली गिव यू, मतलब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं करेगा, तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा हेल्दी फैट्स को डाइट में इंक्लूड करने के लिए, फिर वो चाहे डाइटिशियंस कर रहे हो या फिर वो पेशेंट्स कर रहे हैं। So you need to understand first the healthy fat and the trans fat, and then you have to inculcate in the diet. So thank you so much, Pramod ji, अपने valuable inputs देने के लिए। At the end of the session, मैं इस पूरे सेशन को आपसे चाहूंगी कि आप इसको 1 मिनट में समराइज करें कि कैसे ये पूरा सेशन जो भी हमें सुन रहा है उसके लिए यूजफुल होने वाला है। Yes, before that, before ending, I want to break down some myths also. Like बहुत सारे लोगों को लगता है कि crash diets are effective and they are very quick result oriented to weight loss. So I can say ये बहुत बड़ा myth है कि ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, but it is not that much effective. It will lose their muscle in long term. बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज में लगता है कि कार्डियो पे फोकस करो, कार्डियो से फैट बर्न होता है, बट जितना आप वेट ट्रेनिंग करोगे आपकी बॉडी में मसल बनेगा, और मसल को मेंटेन रखने के लिए बॉडी ऑटोमेटिक आपका फैट बर्न करेगी। तीसरा मिथ हमने ऑलरेडी ब्रेक किया, दैट इज फैट्स आर हार्मफुल। सो नो, नेवर ऑल फैट्स आर हार्मफुल। जैसे मैंने बोला मिक्स सीड्स यूज करो, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया घी, बट फॉर घी आई विल सजेस्ट गो फॉर जेन्युइन घी, जो भी आपको मिल रहा है 400-500 रुपए लीटर में, दैट इज नॉट एन घी। 500 रुपए 700 लीटर में 700 रुपए लीटर, हाँ वो कोई घी नहीं है। सो गो फॉर एन अच्छे घी ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। उसी के साथ बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मतलब ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि मैं भूखा रहूंगा या भूखी रहूंगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि खाने से ही बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है। तो आप जितना ज्यादा खाओगे उससे ही कम होगा, बट सही खाना बहुत जरूरी है। उसी के साथ डाइट फूड और ऑलवेज हेल्दियर, बहुत सारे डाइट फूड आज मार्केट में बेचे जा रहे हैं इस नाम से कि मतलब उसके ऊपर लिखा है डाइट फूड है, बट उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या डले हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे के सारे डाइट फूड अनहेल्दी है, बट यू हैव टू चूज सम ऑफ द हेल्दी ऑप्शंस। उसके साथ कार्ब्स से डर लगता है लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग फिर कार्ब, मतलब मैं कार्ब ही नहीं लूंगा, इसमें कार्ब है, इसमें कार्ब है। ये क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन है। सो इसकी वजह से वो कार्ब्स को हटा देते हैं। ऐसा नहीं है, सही कार्ब्स लाइक फ्रूट्स आर गुड कार्ब्स, योर सैलेड्स आर गुड कार्ब्स, इवन यू आर यूजिंग मतलब अलग अलग रोटीज आप यूज कर रहे हो, अलग अलग कार्ब्स यूज कर रहे हो, सिर्फ सिमिलर टाइप के आप ले रहे हो तो प्रोसेस ले रहे हो तो तकलीफ है। तो वो भी हमें नॉलेज लेना चाहिए। उसी के साथ रात में खाना खाने से वेट बढ़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आप रात में खाते क्या हो उसे चेंज करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ कैलोरीज का आपने शुरू में पूछा था, कैलोरीज मतलब इसमें कैलोरीज है तो मैं कैलोरी मैनेजमेंट करूंगा, यानी मैं 1200 कैलोरी डाइट फॉलो करूंगा और फिर मेरा वेट लॉस होगा। तो एक्चुअली वो वेट लॉस होगा नहीं होगा पता नहीं, बट इसको हॉस्पिटलाइज जरूर करना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है।
तो ये भी एक बड़ा मिथ है। को कैलोरीज आती कहाँ से वो देखना जरूरी है। एंड लास्ट की वेट लॉस मतलब मेरे हार्ट की प्रॉब्लम गारंटीड कम हो जाएगी, क्योंकि सेशन इज रिलेटेड टू हार्ट। सो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। और बहुत सारे लोगों को जब भी ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज आते हैं, दे सडनली वो चले जाते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है। तो ऐसा नहीं है। आपको आपका वर्कआउट सही रखना पड़ेगा, स्लीप हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा, वाटर इंटेक देखना पड़ेगा, आप माइक्रोस को कवर करोगे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के इंटेक से, ये सारे फैक्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेज करना, इसी से आपका हेल्दी हार्ट रहेगा। तो ये कुछ मिथ्स थे। अब पूरे सेशन को अगर आपको यूजफुल करना है तो यही कहूंगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखिए जो भी आपको करना है उसमें। शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट्स, मतलब एक मराठी में मूवी आया था, मूवी चला नहीं लेकिन टैगलाइन मेरे दिमाग में बहुत अच्छा फिट हो गया। उसका नाम था शॉर्टकट और लिखा था नीचे दिसतो पण नसतो, मतलब शॉर्टकट दिखता है पर होता ही नहीं, उसे बोला जाता है शॉर्टकट। सिर्फ दिखता है, हाँ शॉर्टकट है, तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है शॉर्टकट। तो डोंट टेक इन शॉर्टकट्स, कॉन्टेक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ कोचेस नियर यू एंड न्यूट्रिशनिस्ट नियर यू, और उन्हीं के गाइडेंस में कीजिए। थोड़ा सा आपका मतलब क्या होता है, हम खुद से करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमसे गलत हो जाती है। हमें जैसे आईना लगता है खुद को देखने के लिए, खुद को संवारने के लिए, वैसे ही कोच लगता है जो आपको सही से गाइड करेगा। यही मेरा लास्ट में एक ये रहेगा। Yes, ma'am. Thank you so much. So it's time to now go for queries. हमारे पास कुछ queries आई हुई हैं, काफी लोगों ने query करी है। तो Yes, यहाँ पे let's start करते हैं one by one queries लेना. And in case if anybody else has a query, please let me know in the chat boxes and in the comment boxes so that आप लोगों को queries को resolve करवाया जा सके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मधु अग्रवाल हैं जो कहते हैं कि मैम मैक्सिमम पीपल दे डोंट नो अबाउट नट्स एंड सीड्स टू बी सोक्ड, अब क्या करें? तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो सीधा सा आंसर यही जाता है, एजुकेट कीजिए एज अ डाइटिशियन भी। मेरे ख्याल से प्रमोद जी भी इस पे एग्री करेंगे कि like we all know that in the beginning we introduced you, Sheetal is taking care of the diet consultation part and Pramod ji is educating on that part, right? तो being a dietitian बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए, एजुकेट करना पेशेंट जो भी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, आप उनको नहीं बता रहे हो कि आप जो दे रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है उनके लिए या उनकी बॉडी में क्या चेंजेस लाने वाला है, तो वहां पे डिफिकल्टी होने वाली है आगे जनरेशन, राइट? तो इसीलिए एजुकेशन इज द मस्ट पार्ट, तो साथ साथ आपको एजुकेट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी हम एक और लेते हैं क्वेश्चंस। वेट लॉस के लिए कुछ लोग प्रोटीन पाउडर खाते हैं या कुछ लोग टैबलेट्स खाते हैं, तो इससे बॉडी पर क्या असर होता है? प्रमोद जी इसका आंसर आप लोग देना चाहूंगी। प्लीज बताइए कि काफी लोग ऑब्वियसली यस मार्केट में बहुत फ्लडेड है, प्रोटीन पाउडर प्रोटीन टैबलेट्स भी फ्लडेड है। लोग इवन मैंने भी कई बार अपने न्यूज रिपोर्टिंग में भी कई बार उससे पहले बताया है कि इवन आई हैव विटनेस्ड मेनी ऑफ द सेलिब्रिटीज के कई लोग एकदम से फैट पिल्स खाते हैं, जिम जाते हैं, और कई लोगों की सडन एट द यंगर एज भी हार्ट अटैक एकदम से डेथ्स हो रही, राइट? तो उस पे क्या आपका टेक है, क्या कहना चाहिए उसको? यस, सबसे पहली चीज तो प्रोटीन जो है पाउडर फॉर्म में लेना ये गलत बिल्कुल नहीं है। बट अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, मतलब पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप छोटा मोटा थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हो और उतना आप फूड से मैनेज करते हो, तो आपको जरूरत नहीं किसी प्रोटीन पाउडर के पास जाने की। अभी इसमें मार्केट जैसे फ्लडेड है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा, आपके लेवल्स पढ़ने आने चाहिए कि आपको किसमें कितना प्रोटीन मिलता है। बहुत सारे तो प्रोटीन पाउडर बोला जाता है, बट अगर आप उसके लेवल को पढ़ोगे तो उसमें 30% प्रोटीन रहता है, 40% प्रोटीन रहता है, 60% ऐसी चीजें रहती है जो आपका वेट बढ़ाएगी एक्चुअल में, ना कि कम करेगी। तो वेट मैनेजमेंट में प्रोटीन पाउडर में बहुत सोच समझ के जाओ। पहले तो आपका रिक्वायरमेंट है क्या उतना, और फूड से अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट में जाना है। सप्लीमेंट में ये नहीं कहूंगा कि सप्लीमेंट गलत है, बट विदाउट एजुकेशन अगर आप ले रहे हो या किसी नॉन मेडिको पर्सन से आप ले रहे हो तो वो गलत है। और बहुत बार क्या होता है, हम भीड़ को देख के जाते हैं, लाइक वो रिजल्ट्स दिखाते हैं, ऐसे रिजल्ट आया ऐसे रिजल्ट आया, लेकिन अगर उसका परसेंटेज देखोगे तो 100 में से 3-4 लोगों को रिजल्ट आया, एंड वो भी आप देखोगे नॉट बिकॉज ऑफ दैट सप्लीमेंट्स आए, दे हैव वर्क ऑन देयर डाइट आल्सो, दैट हैबिट्स आल्सो, लाइफस्टाइल आल्सो, क्योंकि वो भी सिखाया जाता है।
मतलब आप किसी भी से प्रोटीन लो, वो लोग आपको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि प्रोटीन लो कम हो जाएगा, वो सब में बोलेंगे आपको ये डाइट करना पड़ेगा, ये खाने में छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब कुछ है। अभी वेजिटेरियन पीपल्स को प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, तो वहां पे मैं ये कहूंगा कि आपकी डाइट में बहुत सारे वेज सोर्सेस है। लाइक पनीर अगर आप 100 ग्राम ले लो तो यू आर गेटिंग 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। यू आर टेकिंग लाइक अभी बीच में जॉन अब्राहम का वो शॉर्ट्स बहुत वायरल हुआ है, कपिल शर्मा के शो पे आए थे और वहां पे बोला है मैं वेजिटेरियन हूँ। अभी वो वेजिटेरियन हुआ है, तो वेजिटेरियन होने के मतलब पहले उन्होंने जो बॉडी बिल्ड किया है दैट इज विद सप्लीमेंट्स विद नॉन वेज डाइट, नाउ ही इज मेंटेनिंग दैट ऑन बीइंग वेजिटेरियन। So yes, you can maintain it and you can build your totally body also with this, but आपको स्प्राउट्स यूज करने पड़ेंगे। अभी कुलित हॉर्स ग्राम रहता है, कितना अच्छा सोर्स है, मतलब बहुत ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं, ड्राई फ्रूट्स है, सब कुछ है। लेकिन हाँ, फिर लोग क्या कर रहे हैं, होममेड प्रोटीन पाउडर भी बना रहे हैं अभी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। होममेड प्रोटीन में आप डाल रहे हो ज्यादा से ज्यादा नट्स डाल रहे हो, ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो, इसमें फैट परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा। सो ये मतलब थोड़ा हमें अवेयरनेस लेना पड़ेगा इन पे कि क्या हम कर रहे हैं, तो थोड़ा माइक्रोस कैलकुलेट करके बनाओ तो सही है। मैं ये नहीं कहूंगा प्रोटीन पाउडर गलत है, लेकिन अगर आपका बेसिक लाइफस्टाइल है, आप जिम नहीं जा रहे हो, आपका बेसिक वर्कआउट रूटीन है, तो यू कैन मेंटेन दैट विथ योर होम डाइट ऑल्सो। जिम जाने वाले भी करते हैं होम डाइट पे। प्रोटीन पाउडर क्या है, इट इज सब्सटीट्यूट, कि अभी मुझे खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, बनाने के लिए छोड़ो, खाने के लिए भी टाइम नहीं, तो मैं उस समय के लिए ले रहा हूँ, इट इज ओके। बट आप अच्छे ब्रांड का देख के ले रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज दैट इज ऑल्सो बैड थिंग। यस मैम। और दूसरी चीज इसमें मैं और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, विदाउट ब्लड रिपोर्ट रीडिंग्स और विदाउट एनालाइजिंग द बॉडी अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपकी किडनी का भी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको हर चीज का ध्यान रखना है। अगर आप एज अ पेशेंट पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर कंसल्टिंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, तभी आप अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को लेके जाएं। और अगर आप एज अ डाइटिशियन हमें सुन रहे हैं, तो आई वांट एवरीबॉडी टू मेक श्योर कि आप ब्लड रिपोर्ट रीड करें पेशेंट की, उसकी बॉडी एनालिसिस करें, तभी आप उसको एक राइट कॉम्बिनेशन डाइट में बना के दे, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्ब्स, राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज और लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, कैन यू हाईलाइट ऑन हिप एंड वेस्ट रेशियो? हिप एंड वेस्ट रेशियो कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हिप का रेशो मैक्सिमम 36 होना चाहिए, वेस्ट का 30-32 होना चाहिए, ज्यादा से एक ज्यादा। हेल्दी रेशियो है जो हम मेंटेन करके रख सकते हैं, यू आर Yes. एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे आई होप सबकी क्वेरीज हम लोगों ने अब तक ले ली है। ओके, कई चीजें होती हैं, तो उसके क्लिनिकल बैकग्राउंड्स क्या हैं, अगर आप आप पेशेंट हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो प्रोटीन लें या नहीं लें, तो काफी चीजें आपको आपके ब्लड रिपोर्ट्स के पैरामीटर पे चेक करके ही की जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और आया है हमारे पास ऋतु जी का, वेट स्टक होने पर क्या करें? वेट स्टक होता ही इसीलिए है मिस ऋतु कि आप अपने पेशेंट्स को या एज अ पेशेंट आप एक ही चीज को फॉलो कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। सपोज आप उनको, या आप खुद 1200 कैलोरी डाइट चार्ट ले रहे हो, तो आपने अपनी बॉडी को 1200 पे बीएमआर को सेट कर दिया है, तो दैट बॉडी बिकम्स यूज, राइट। अब हमें उस पार्ट को हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, व्हाट वी जनरली गो टू, इधर वी गो विद अ कैलोरी शॉट, हम उनको एक रेगुलर डाइट पे लेके आते हैं, उनके फेवरेट्स खाने को खिलाते हैं, राइट, या फिर हम उनकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। देयर आर ईदर द टू वेज, लेकिन इनको करने का तरीका होता है, इनको कितने टाइम पीरियड के लिए करना है रेगुलरली, वो आपको अपने पेशेंट के क्लिनिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर ही करना है। अगर मैं ये बोलूं डिटॉक्सिफिकेशन, कई लोग बोलते हैं कि 3 दिन लगातार करा दें विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, कि आपको डायबिटिक पेशेंट के साथ नहीं करा सकते, आपको लिवर पेशेंट के साथ जो सिरोसिस पे है या जिनका फाइब्रोसिस स्टेज चल रहा है उनको नहीं करा सकते हो, राइट। किडनी के पेशेंट उनको नहीं करा सकते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद आप उनके वेट स्टक को मैनेज करेंगे। So it was a wonderful session, dietitian Sheetal and Mr. Pramod. We are so blessed that आप लोग पैनल पे आए, आप लोगों ने अपनी experienced knowledge हम लोगों के साथ शेयर करी, सबके There are साथ। many few questions here, but we can't address each and every. यहाँ पे कुछ आए हैं. Okay, we are still receiving certain questions. While doing intermittent fasting, can we work out? And during fasting period, can we work out? Obviously, yes, कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप फास्टिंग पीरियड में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पीरियड में हो, आप बिल्कुल वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन है, फास्टिंग का मतलब होता है आपने अपने माउथ से खाना अंदर देना बंद करा, लेकिन जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्टोर्ड चीजें हैं, बॉडी उसको एज एनर्जी यूज करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। फास्टिंग पीरियड आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करेगा, क्योंकि थैंक्स टू गॉड कि हमारी जो बॉडी है, हमारा हर ऑर्गन नेचुरली डिटॉक्सिफाई इजीली हो जाता है अगर आप टाइम दे। फॉर एग्जांपल लिवर है, लिवर भी खुद अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना जानता है, अगर आप अपने फूड पे या अपने जो आप इनटेक कर रहे हैं उस पे आप होल्ड रखते हैं, ठीक है। अगर आप फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के पीरियड में लिवर काम नहीं कर रहा है, मतलब जो आप ऊपर से उसको खाना दे रहे हो, स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, लिवर पे उस पे काम नहीं कर रहा है, तो लिवर उस टाइम पर रिपेयरमेंट का काम करता है। तो योर बॉडी कैन प्रोसेस द थिंग्स अकॉर्डिंगली, बस आपको अपनी चीजों को वर्कआउट करना है। तो आप एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ विल डेफिनेटली एंड द सेशंस। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस और बाकी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं हेल्दीफाई हेल्थ प्रोग्राम ग्रुप में, और हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस को वहां पे एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रमोद एंड डाइटिशियन शीतल। विल डेफिनेटली we are looking forward to more and more sessions along with you and our different experts on panel. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं एक नए एक्सपर्ट्स के साथ नए टॉपिक पे। So to you, see you then. Thank you so much, everyone, and stay connected and stay blessed. Thank Thank you. you so much. Thank you so much. Thank you once. Thank you.